ओम शांति। आज बाबार 5-10-2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন যে যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা তারা ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্যে কত সাধনা করে, কত তপস্যা করে তারা একদম একান্তে চলে যায়, তো ঠিক সেই রকম তোমরাও যতটা সময় পারছো তোমরা একদম একটা আলাদা কুঠরিতে বসে, আলাদা জায়গায় বসে তোমরা বারবার অভ্যাস করো যে আমি দেহ নয়, আমি আত্মা। এবার আমার নাটক শেষ হলো, আমি এই দুনিয়া থেকে পুরো ডিট্যাচ হয়ে এবার নিজের বাড়ি ফিরে যাব। তো বাবা বলছেন বারবার তোমরা নিজেকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো, নিজেকে একদম বিদেহী বানিয়ে দাও, এমন যেন ফিল হয় যে আমার শরীর বলে কিছু বস্তুই নেই। তো এতটা তোমরা অভ্যাস করো, একদম অন্তর্মুখী হয়ে যাও। বাবা আজকে বলছেন যে তোমরা এত সুন্দর অভ্যাস করো যাতে দেহ রাখার সময় এক বাবার ইয়াদেই তোমরা শরীর ছাড়তে পারো। আজকে বাবা একান্ত শব্দের অর্থ বলেছেন যে একান্ত মানা একের স্মরণে এই শরীরকে অন্ত করা, এটাই হচ্ছে একান্ত। তো এভাবে বাবা আজকে খুব বিদেহী স্থিতির উপরে জোর দিয়েছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। बाबा एकदम ज्ञानेर प्रथम कोर्स कराচ্ছেন। বাবা বলছেন একান্তবাসী হয়ে এমন অভ্যাস করো যে আমি এই শরীর থেকে পুরো আলাদা একটা আত্মা। এটাকেই বলা হবে जीते जी মরে যাওয়া, বেঁচে থাকতে মরে যাওয়া। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে একান্ত का अर्थ क्या है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে একান্ত মানে কি। एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है। एकांते বসে তুমি কি অনুভব করবে। तो उत्तरे बाबा बोलছেন एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एकांत माने एकेर स्मरणे এই শরীরের অন্ত যেন হয়। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। যেমন আমরা এই শরীর দিয়ে একদম मरे गए छी, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। तो बाबा खूब सुंदर आज के एकांत शब्देर अर्थ बोलें जे एकांत माना एकेर स्मरणे शरीरेर अंत। तो যখন আমাদের অন্তিম সময় আসবে তো আমরা বাবাকে याद করতে করতে এবং নিজেকে আত্মিক স্থিতিতে রেখে এই দেহরূপী চামড়াকে ছেড়ে দেওয়া, এটাই হচ্ছে একান্তে যাওয়া। কোনো দেহধারী যেন মনে না পড়ে। তো বাবা বলছে তোমরা বারবার এভাবে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো যে যাতে অনুভব হয় যে আমার শরীরই তো নেই, আমি শুধু একটা আত্মা। এইভাবে অভ্যাস করলে তোমাদের দেহ অভিমান দূর হয়ে যাবে। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, पाठ हम आत्मा बजाती हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन्स से काम लेवें व न लेवें।
বাবা বলছেন যেমন একটা গাড়ির ড্রাইভার তার ইচ্ছা মতন গাড়িকে চালায়, ইচ্ছা মতন গাড়িকে বন্ধ করে দেয়, ইচ্ছা মতন গাড়িকে টার্নিং দেয়, তো ঠিক সেরকম আমি আত্মা এই দেহের মালিক। আমি যখন ইচ্ছা হবে এই শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারা কাজ করাবো, আর যখন আমার ইচ্ছা নেই আমি করাবো না। তো বাবা বলছে এইভাবে মালিক হয়ে এই দেহকে পরিচালনা করো। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ, हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। बाबा বলছে যে তোমরা নিজের আত্মিক সত্তায় ফিরে আসো। আত্মা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দেহের কোনো বন্ধন आत्माके बांधते पारे ना, बेंधे रखते पारे ना। तो हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। বলছে যে এত অভ্যাস করো যে বেঁচে থাকতে যেন আমরা এই দুনিয়া থেকে মরে গেছি, এটাকেই বলা হবে কর্মাতীত অবস্থা। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ, बाकी तो दुनिया से घर से मर गए हैं। कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया। বলছেন যে বলাই হয় যে নিজে মরলে আমার জন্য সারা দুনিয়াই মরে গেছে। तो अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, तो शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो, यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को क्यों याद करें। বলছে তোমাকে তো এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তাহলে এই পুরনো দুনিয়াকে কেন মনে করছো। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बात कर मेहनत करनी है। বলছেন একান্তে বসে নিজের সঙ্গে এরকম পরিশ্রম করো, নিজে নিজে आत्मचिंतन करो। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। बाबा বলছেন যে পুরুষার্থ তো ব্রহ্মা বাবা করছেন, পুরুষার্থ শিব বাবা করছেন না। কেন, শিব বাবাকে তো সত্যযুগের মালিক হওয়া দরকার নেই, তো বাবার তো কোনো বিকর্ম নেই যে বিনাশ করার জন্য বাবাকে পুরুষার্থ করতে হবে। তো বাবা বলছে যে পুরুষার্থের শব্দটা মনুষ্য আত্মার সঙ্গে লাগছে, শিব বাবা পরমাত্মার সঙ্গে নয়। तो जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। तो अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं। বাবা বলছেন যে তোমাকে বাইরে বেশি মুখ চালানো দরকার নেই, মুখ একদম চুপ, অন্তর্মুখী হয়ে তুমি বাবাকে স্মরণ করো, সারাদিন মনের মধ্যে জ্ঞানের মনন চিন্তন করো। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে ভক্তি মার্গেও যারা ব্রহ্মতত্ত্বকে স্মরণ করে তারা একদম
চুপচাপ হয়ে যায়, একদম মৌন হয়ে যায়, বা যারা শিবের নাম জাপ করে তারাও একদম শিবমগ্ন হয়ে যায়। তো সেরকম তোমরাও একদম একান্তবাসী অন্তর্মুখী হয়ে बाबार यादें थाको। तो बाहर में कुछ बोलना नहीं है, परंतु वह याद कोई अर्थार्थ नहीं है। বলছেন যারা ব্রহ্মতত্ত্বকে याद করছে বা যারা শিবকেও পুজো করছে বা শিবের নাম জাপ করছে তাদের স্মরণ যথার্থ নেই, কেন তারা তো বাবার পরিচয় জানে না। तो तुमको तो अब बाप का परिचय मिला है, এখন আমরা তো বাবার পরিচয় জেনে গেছি। तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। বাবার কাছে কি সুন্দর কথা বলতে হবে যে বাবা এই দেহ পুরনো দুনিয়া ছেড়ে এই তো আমি আসলাম তোমার কাছে, তোমার সাচ্চা কোলে আমি আসছি। तो वह है रूहानी गोद, तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाप में ही सारा ज्ञान है चक्र का। तो बाबा बोलছেন যে তোমাকে সদর্শন চক্র ফিরাতে হবে। তো সারা দিনে আমরা যখনই সময় পাবো পাঁচটা স্বরূপের যে সদর্শন চক্র সেটা আমাদেরকে ফেরাতে হবে। तो बाप में ही सारा ज्ञान है चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं, यह वंडरफुल बात है। भागी रथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। বলছেন আমি যে শরীরে আসি তাকে ভাগীরথ বলা হয়, ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, এবং তার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও শেষ টাইমে আমি আসছি। तो नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। तो वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবা কখনো নিজেকে ভগবান বা নারায়ণ বা বিষ্ণু বলছেন না। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। বলছে একের স্মরণে শরীরের অন্ত যেটা হয়ে যায় এটাকেই বলা হবে एकांत। तो वह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है, बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে মানুষ কত রকম ধাক্কা খাচ্ছে। আজকে রামের পুজো, কাল হনুমানের পুজো, শুক্রবারে সন্তোষী মায়ের পুজো, তারপরে মা মনসা পুজো, তো কত ধরনের বিধি বিধান পুজো পার্বণ। তো বাবা বলছে এসব তো ধাক্কা খাওয়াই আছে না, আর বাবা তো সমস্ত রকম ধাক্কা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিচ্ছেন। तो याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है।
स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, तो यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप टीचर को भी भूल जाएंगे। बाबा बोलছেন যদি নিজেকে তুমি আত্মা না ভাবো তাহলে বাবাকে বাপ टीचर गुरु रूपेও আমরা भूले যাব। एकांत में बैठ ऐसे 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 विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। बाबा बोलছে যে একটা सांसारिक परिवेशे तो वायुमंडल ठीक থাকে না। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। तो यदि बाड़ीते कोথাও যদি জায়গা থাকে তাহলে একটা আলাদা রুমে চুপচাপ বসে যাও और ওখানে पुरुषार्थ करो, तपस्या करो, साधना करो, अंतर्मुखी होवार चेष्टा करो, निजेके आत्मा भावार चेष्टा करो। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं तो जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। बच्चे मातारा बाच्चारा स्कूल चले जावार परे फाँका हो जाए तो काजकर्म शेष करे যতটা समय पारो आलादा एकांते बसे ज्ञानेर मनन चिंतन करो, आत्मिक स्थितिर अभ्यास करो। बार बार परमधाम जावार ड्रिल करते हबे। तो तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान हैं और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। বলছে মানুষের যখন কারোবার বা কাজকর্মের যখন চিন্তা চলে তখন তো ঘুমও নষ্ট হয়ে যায়, ঘুমও আসে না। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমাদেরও তো এটা একটা ব্যবসা, তোমাদেরও তো একটা বিজনেস। তো যত তুমি বাবাকে সেকেন্ড সেকেন্ড স্মরণ করবে তত তোমার জন্ম জন্মান্তরের ইনকাম হচ্ছে। तो यह भी व्यापार है ना, कितना बड़ा सर्राफ है। বলছে কত বড় तुम्हारे এটা ব্যবসা, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। तो मट्टा सट्टा माना पुरनो किछु दिए नतून नेवा। तो যেমন এক একটা কোনো দোকান থাকে না যেখানে সব পুরনো মাল নেয় আর নতুন দিয়ে দেয়, তো সেরকম বাবা বলছে যে আমি তোমাদের সব কিছু পুরনো নিচ্ছি, পুরনো শরীর, পুরনো মন, পুরনো ধন, আর তোমাদেরকে সব কিছু নতুন দিচ্ছি আমি। তো কত বড় এটা ব্যবসা। तो पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। तो यह भी धंधा उनको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है ना। तो बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। বলছে এত বাবাকে মিষ্টি করে স্মরণ করো, মনের এত সব কথা বলো, সর্বসম্বন্ধ বাবার সঙ্গে যুক্ত করো, বাবার প্রেমে একদম লভলীন হয়ে যাও, তাহলে বাবাকে যোগ করতে করতে তোমার ঘুমও নষ্ট হয়ে যাবে। तो कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं ना। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। যেমন এখন পুজোর সিজনে কি হয়, সারা রাতও দোকান খোলা থাকে, এত ভিড় থাকে। তো বাবা বলছে যে তোমাদেরও এরকম ইনকাম হচ্ছে, তো রাত জেগে জেগেও তুমি পুরুষার্থ করো। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। बाबा बोलছেন যে মানুষ একটুখানি ধনী হওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করছে, কত মেহনত করছে, সারা দিন রাত তারা পরিশ্রম করে। তো বাবা বলছে তুমি তো জন্ম জন্মান্তরের জন্যই সাহুকার হচ্ছ, তো তোমাকে কত পরিশ্রম করা উচিত। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा।
याद के यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, तो अब जमा करना है। বলছেন মাথার উপরে পাপের বোঝা প্রচুর আছে, এই জন্যে যতটা সম্ভব তো বাবাকে স্মরণ করো, নাহলে তোমার অনেক ঘাটা পড়ে যাবে। तो अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। বাবা বলছেন আধা কল্পের জন্য তুমি এই অবিনাশী ধনকে জমা করো। तो यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं बच्चों को भी युक्ति बताते हैं। ब्रह्मा बाबा যেমন রাত 2টোর সময় উঠে যেতেন আর সবাইকে খুব মানে যোগ করে সবাইকে আহ্বান করতেন, সব বাচ্চাদের মধ্যে শক্তি ভরতেন, সকাশ দিতেন, তারপরে জ্ঞানের মনন চিন্তন করতেন, বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি রোহরিহান করতেন। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও রাতে তাড়াতাড়ি উঠে ভোর সকালে তোমরাও এরকম পুরুষার্থ করো। फिर कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। অনেক বাচ্চারা কি বলে বাবা মায়ার তুফান খুব আসছে। तो बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। বলছে যত তুমি যোগ করবে, যত তুমি মুরলি শুনবে, যত বিচার সাগর মন্থন করবে, এটাই তোমার কাজে লাগবে, আর কোনো কাজে কিছুই আসবে না। तो एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। বলছে তারপরেও যদি তোমার কাছে সময় আছে তাহলে তুমি যাও মন্দিরে মন্দিরে, ওখানে গিয়ে সেবা করো। बैच जरूर लगा रहे, बैच अवश्य पढ़े जाओ, तो सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। বাবা বলছেন যে একদিন আসবে যখন সবাই বুঝবে যে এখন আমাদের স্বর্গ রাজ্য আসছে, তো ট্রান্সলাইটে যে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র আছে সেটাকে সবাই পরিক্রমা দেবে আর বলবে যে আমাদের স্বর্গ এখন আসছে। তো বাবা বলছে এরকমও দিন আসছে। तो यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्हों की राजधानी थी ना, तो यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे, तो यह सब प्लान कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। বলছে অনেকেরা বলে না যে আমরা 7 দিন পর্যন্ত এখানে আপনাদের দ্বারা গীতার পাঠ করাবো, গীতা জ্ঞান শোনাবো। তো বাবা বলছে পূর্বকল্পে ওদের মনে যা যা সেবার বিচার এসেছিল সেই বিচার আসবে। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। বাবা বলছে যে তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণ বা রাধা কৃষ্ণ সব সাজিয়ে তোমরা रैली करो, তোমরা परिक्रमा कराओ। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। यह गीता के अक्षर है ना, भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो, शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी,
एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। तो बाबा बोलছেন যে মানুষ তো চাইছে যে এক রাজ্য এক ধর্ম সব কিছু এক হোক, কিন্তু এই পৃথিবীতে তো সেটা সম্ভব না। এই জন্য দুনিয়াকে বিনাশ করে বাবা নতুন এক রাজ্য স্থাপন করছেন, ধর্ম স্থাপন করছেন। তো মানুষ ধীরে ধীরে এটা অনুভব করবে যে হ্যাঁ সেটাই এখন আসছে, এক রাজ্য এক ধর্ম আবার স্থাপন হচ্ছে। तो 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको खुशी भी होगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलेंगे, जास्ती आवाज़ नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। বাবা বলছেন যে শান্তিতে থেকে তোমরা একটু বাবার জ্ঞান দাও, বাকি বেশি গান বেশি কবিতা এগুলো বাবা পছন্দ করেন না। बाहर वाले मनुष्यों से तुम्हें कोई भी प्रकार की रीस नहीं करनी है। বলছে বাইরে এগুলো হয়, বাইরে কোনো মঞ্চে অনেকগুলো কবিতা গান আবৃত্তি এসব হয়, তো তাদের মতন তুমি এরকম রিস করো না যে তাদের মতন তোমরাও গান করছো, এসব করো না। तुम्हारी बात ही कुछ और है, तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बस स्लोगन भी अच्छे हों जो मनुष्य पढ़कर जागें। বলছে যে ভালো ভালো প্রদর্শনীতে স্লোগান লাগাও যে মানুষ পড়ে একটু যেন তাদের বুদ্ধি জাগে। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। বাবা বলছেন বাচ্চারা বাবার সেবায় যা কিছু দিচ্ছে তো বাচ্চাদেরই সেবায় লাগছে। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में आती हैं। বলছে তোমাদের জিনিস তোমাদের কাজেই আসবে। तो भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कोई तकलीफ नहीं होगी, और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। দেখুন বাবা কি বলছেন। বাবা বলছেন যে গভর্নমেন্ট এখন কত প্ল্যানিং করছে, কত পরিযোজনা বানাচ্ছে যে আমরা এত ফলন করব, ভারতবর্ষে কোনো রকম খাওয়া দাওয়ার অভাব হবে না, কোনো খাদ্য সামগ্রীর অভাব হবে না, এত চাষবাসকে সুন্দর করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাবা বলছে ওদের প্ল্যান হচ্ছে অন্যরকম। আর তোমরা জানছো যে এমন পরিস্থিতি আসবে যে খাওয়ার জন্যে অন্ন দানাও পাওয়া যাবে না। তো ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। বলছে এটা না যে খাদ্য সামগ্রী খুব সস্তা হয়ে যাবে, তা না। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। বাবা বলছেন যে খুশি মতন खुराक नहीं, खावा नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। তো বাবা বলছেন যে তোমরা 21 জন্মে রাজ্য ভাগ্য পাচ্ছ, তো কিছু তো সহ্য করতে হবে, কিন্তু যাই পরিস্থিতি আসুক তোমাদের মনের খুশিকে তোমরা যেন হারিও না। আর এত খুশি যে বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে যেমন গোপ গোপীরা কৃষ্ণকে পেয়ে যে সুখ পেত, যে আনন্দ পেত, সেই খুশিতে তোমরা থাকো। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। বলছে তোমাদের দেবী দেবতা কুলের যে আত্মা থাকবে তারা ঠিক চলে আসবে। तो झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है, और धर्मों में ऐसा नहीं होता है। वह तो ऊपर से आते हैं,
यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। तो उन्हों को कुछ तकलीफ नहीं है, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, तो इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, बहुत से धर्म पिता दे पिछने पिछने तरह आशे, तो वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा एखाने भविष्य देवी देवता धर्म स्थापना करছেন। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, तो पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। बाबा বলছেন যে স্যাপলিং যেটা লাগানো হয় কলম, তো সেটা কি হয় যে আগে ছোট ছোট চারা গাছকে গামলায় লাগিয়ে তারপরে যখন ওটা স্ট্রং হয়ে যায়, মজবুত হয়ে যায়, তখন মাটিতে লাগানো হয়, तो वृद्धि होती जाती है। तो तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, तुमरा नतून दुनियार स्थापना करछो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গে মানুষ জানে যে এখন কলিযুগ, ছোট শিশু বাচ্চা, এখন কলিযুগের অন্ত হতে অনেক সময় লাগবে, 40,000 বছর বাকি আছে। তো বাবা বলছেন যে তোমরা দেখতে পারছো যে সামনে তিসরা বিশ্ব যুদ্ধ বা মহাভারত লড়াই সামনেই রয়েছে। তো যদি মহাভারত যুদ্ধ হয় তাহলে গীতার ভগবানকেও থাকতে হবে। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं, तो बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे। तो कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा। বলছে তোমরা তো জানো যে কৃষ্ণ হচ্ছে সত্যযুগের রাজকুমার, তো সে আবার দাপর যুগে কেন আসবে গীতা জ্ঞান শোনাতে, সে তো সত্যযুগে হয়ে এসছে। तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं, सत्युग की स्थापना करने वाला बाप ही है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही हैं, एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। বলছেন একদিন তোমাদের কাছে এই সমস্ত জিনিস ट्रांसलाइटर हो जावे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसा चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तो बाबा বলছেন যে सब चित्र द्वारा विहंग मार्गेर सेवा हो जावे। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो तुमको फुर्सत ही नहीं रहेगी। बाबा বলছেন যে এত বাবার বাচ্চারা আসবে যে একদমই সময় পাওয়া যাবে না। বাবা দিদি দাদিদেরকে বলছেন যে অনেক বাচ্চা আসবে, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। বলছে दिन प्रतिदिन তোমাদের শক্তি বাড়তেই থাকবে। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच कर दो। বলছে তোমাদেরকে এটা বলা দরকার হবে না যে বাবা এর বুদ্ধিকে টাচ করিয়ে দাও যাতে ও বাবার জ্ঞানে চলে আসুক। तो टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना,
बहुत बच्चियां लिखती हैं, हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। বলছেন অনেক বান্ধেলি মাতারা বাবার কাছে রিকোয়েস্ট করে, বাবা আমার স্বামী জ্ঞানে চলে না, তার বুদ্ধিকে তুমি টাচ করে দাও, তাহলে সে যদি বাবার জ্ঞান মেনে নেয় তাহলে আমার জ্ঞানে চলতে খুব সুবিধা হবে। তো বাবা বলছে যদি আমি সবার স্বামীর বুদ্ধিকে টাচ করতে থাকি তাহলে তো सत्ययुगे प्रचंड भीड़ हो जावे। तो पढ़ाई की ही मेहनत है ना, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना, सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं। বলছেন আসল কথা তো বাবা আগেই বলে দিচ্ছে क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े, ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। বলছে ড্রামা অনুসারে স্থাপনার কাজ তো কমপ্লিট হবেই। तो बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। বাবা বলছেন সেবার জন্য আমি তোমাকে যা ডাইরেকশন দিচ্ছি তার উপরে একাগ্র হও, তার উপরে অ্যাটেনশন দাও। বাবা कहते बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। বলছে অনেক রকমের ব্যাচ বানাও, লক্ষ লক্ষ পরিমাণে বানাও। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। বলছে যেমন প্যাসেঞ্জাররা টিকিট কেটে যায় তো সেরকম তোমরাও টিকিট কেটে নাও আর একটা ট্রেনে বসে 100 माइल পর্যন্ত সেবা করে আসো। एक डिब्बा से दूसरे में फिर तीसरे में बहुत सहज है। যেমন লোকাল ট্রেন চলে না, তো লোকাল ট্রেন তো প্রত্যেক স্টেশনে থামতে থামতে যায়, তো সেরকম বলছে তোমরাও এক ডিব্বা থেকে আরেকটা ডিব্বা, একটা কোচ থেকে আরেকটা কোচে যাও আর এভাবে খুব সেবা করে চলে আসো। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रहना चाहिए। বলছেন যে তোমাদেরকে খুব সার্ভিস করার শখ থাকা দরকার। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं। বাবা বলছেন মুরলি শুনে জ্ঞানের মনন চিন্তন করো, বিচার সাগর মন্থন করো আর জ্ঞানের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বের করো, রত্ন বের করো। कमाई जमा करनी है। কালকেও বাবা বললেন না যে যদি খুব ব্যর্থ চিন্তন চলে তাহলে একটা মুরলিকে 3 বার 4 বার পড়ো, তাহলে যে কোনো একটা সমর্থ সংকল্প বুদ্ধিতে বসে যাবে আর ব্যর্থ চিন্তন বন্ধ হয়ে যাবে। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। বলছে सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार মানে ঈশ্বরীয় সেবাধারী হয়ে সেবা করতে হবে। 2 নম্বর পয়েন্ট, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। যখনই সময় পাচ্ছ তখনই একান্তে চলে যাও। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। বলছে এমন যোগ অভ্যাস করো যে মনে হবে যে আমরা বেঁচে থাকতে দেহ থেকে আমরা ডিট্যাচ হয়ে গেছি। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। বলছে এটাই যেন তোমরা অনুভব করো আর দেহের ভানটাও ভুলে যাও। আজকের বরদান, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। বাবা বলছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবারে অনেক রকম আত্মা অনেক জায়গা থেকে আসে,
তো অনেক রকম ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার স্বভাব থাকে, কিন্তু সমস্ত ভিন্নতাকে মিটিয়ে একতা আনো, এটাই হচ্ছে সাচ্চা सेवाधारी लक्षण। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। বলছেন সেবাধারীরা নিজের প্রতি হয় না, তারা সেবার প্রতি হয়। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। নিজের তাদের যা কিছু আছে সব কিছু বাবার সেবার প্রতি स्वाहा করে দেয়। तो जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। বলছেন যেমন সাকার বাবা সেবাতে নিজের হাড্ডিও स्वाहा করলেন, এরকম তোমাদেরও প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন সেবা হতে থাকে। আজকের স্লোগান, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। বাবা বলছেন পরমাত্ম প্রেমে, বাবার প্রেমে লভলীন হয়ে যাও, হারিয়ে যাও, তাহলে দুঃখের দুনিয়া ভুলে যাবে। ওম শান্তি।